Today we are creating one Walmart sales dashboard with SQL Tableau, a complete data analyst project for beginners. Yes, guys, you are hearing right. So we are creating today one SQL project which we already created many times, like Domino's project we have created, one other SQL project we have created, but this time we are creating one dashboard presentable data analyst project. Okay, so Tableau we are using here. We can use Power BI also. If you comment Power BI multiple times, so I will create same dashboard, same database, and in the Power BI. But today we are using Tableau because it's using across the world. If you see the ranking of Power BI, Tableau, and other data represent tools, so Tableau is getting edge. Okay, so the best thing, this is free. Tableau public, you can install in Mac, you can install in Windows. So I will create one separate video why we are using Tableau. That's a different case. But in this project, we are creating Walmart sales analytics project. Okay, so this is the complete project we are doing right now. And so let's see the requirements and all that. First of all, we have Walmart Sales Analytics project here, and this is the dashboard look. So first, let me show you the live dashboard here. So here you can see this is a dashboard. Let me go to the preview. So now you can see this is the complete working. Like you can see this is a field map. You can see this is a chart. Even you can download this report, right? Even you can filter this by year. If I want only 2025 data, I can filter. If I want 2022, 24, so all I can filter. Otherwise, you can filter by the values. Just click on, double click on that. So, right, I know you are aware about Tableau, but if not, then we will create a separate playlist for Tableau. Just comment it down. Okay. So, what step we are following? Okay. So let's go to our presentation. देखो एक एक करके चलते हैं, समझ क्या है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. Build a clean production really SQL database, ready SQL database. Perform exploratory data analysis EDA. We already perform that in many projects, but हाँ ये थोड़ा सा हटके होगा because इस डेटा को हम लाइव रिप्रेजेंटेशन में लेके जाएंगे जिससे यू विल गेट द क्लियर आइडिया कि हमने EDA क्यों किया, हमने डेटाबेस को क्लीन क्यों किया, हमने सारे स्टेप्स वन बाय वन क्यों परफॉर्म किए. ओके. Engineer business ready feature and KPIs. KPIs I will make you understand. Develop an interactive Tableau dashboard. Support management decision making. मतलब यार देखो तुम ना डैशबोर्ड बना रहे हो तो उसका कोई मतलब होना चाहिए. तुम फालतू में कोई एक डैशबोर्ड बना के रख दो, भाई देखो हम डेटा दिखा रहे हैं, ये काम नहीं करना है. इंटरेक्टिव डैशबोर्ड का मतलब ही यही है कि भाई आपका जो भी डैशबोर्ड है वो एक अच्छी इंसाइट दे आपके बिजनेस के बारे में. धीरे धीरे करके बात करते हैं. तो डेटाबेस का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ. डेटा सेट हम पे वो देखो, वैसे तो मैं वीडियो में भी दूंगा अभी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, बट आप बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ. तो हमारे पास सेल्स वॉलमार्ट की सेल्स का डेटा है. 1000 रोज हैं, 23 कॉलम्स हैं. एसक्यूएल डेटाबेस में हम क्या क्या स्टेप करेंगे? डेटाबेस क्रिएट करेंगे, सेल्स टेबल क्रिएट करेंगे, डेटा इंपोर्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, इंडेक्सेस, व्यूज, राइट. अब ईडीए हम कैसे परफॉर्म करेंगे? डेटा क्वालिटी, सेल्स एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस, ये स्टेप वन बाय वन हम करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड कॉलम्स होगा वो भी इसमें ऐड करेंगे. ओके. फीचर इंजीनियरिंग. व्हाट आर केपीआईज? ओके, चलो केपीआई एक बार समझ लेते हैं. केपीआई स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्टैंड फॉर कि भाई आपके बिजनेस की ऐसी इंसाइट जो, जैसे सपोज करो मैं कह रहा हूँ एक अच्छा परफॉर्मेंस एक बुरा परफॉर्मेंस दोनों हो सकता है. की परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि केवल बेस्ट ही दिखाएंगे, हम नेगेटिव भी दिखाएंगे, पॉजिटिव भी दिखाएंगे. अ केपीआई इज अ मेजरेबल वैल्यू दैट शोज हाउ वेल अ बिजनेस टीम और प्रोसेस इज परफॉर्मिंग अगेंस्ट इट्स गोल. मतलब अच्छा बुरा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. सिंपल एग्जांपल, इमेजिन यू ओन अ वॉलमार्ट स्टोर. इफ आई योर गोल इज इंक्रीज सेल्स, भाई अब कौन सी बात है, सेल्स इंक्रीज करनी है. टू मेजर वेदर यू are achieving that goal, you track KPI such as total sales, total order, unit sold, एवरेज कस्टमर रेटिंग. मतलब यहाँ पे आपको काम करना है कि भाई मैं एज अ सेल्स पर्सन हूँ तो टोटल सेल कितनी हो रही है, टोटल ऑर्डर कितने आ रहे हैं, यूनिट कितनी सोल्ड हो रही है, मुझे इसको इंक्रीज कैसे करना है. इस टाइप की हम केपीआईज ऐड करते हैं. तो एसक्यूएल केपीआईज हम ऐड करेंगे. एसक्यूएल मैट्रिक्स, टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, परफॉर्मेंस, टॉप प्रोडक्ट, टॉप ब्रांच, टॉप सिटी, profitability, gross income, gross margin, total. And guys, this project you can add in resume also. या देखो ये वाली लाइन रह गई थी इसलिए अंधेरा हो गया एकदम से, बट हाँ ये प्रोजेक्ट को तुम अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो कि लाइक आई हैव डन कंप्लीट एनालिसिस विद एसक्यूएल, देन आई हैव
क्रिएटेड एन इंटरेक्टिव डैशबोर्ड विद टैब्लू और पावर BI, ठीक है। तो ये तुम बड़े आराम से अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। कोई दिक्कत आए, तुम्हारा भाई बैठा है, मैसेज करो, कॉल करो, बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। एंड हाँ, again, if you want any kind of interview preparation, any guidance or something, link in description, you can check out and book your slot. Okay, so let's start the video. So guys, let's start with our first Tableau dashboard public. Okay, so what you need to do is, after opening Tableau public, you are able to see there is a file section, right? Excel, text file, JSON file, PDF file, or you can connect with server also, right? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एज वी सी वी हैव CSV फाइल, तो या तो हम एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर हम टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वी विल इंपोर्ट एज अ टेक्स्ट फाइल, तो वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन इट, और व्हाट्स द बेस्ट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डायरेक्टली ड्रैग and import it. Simple. Okay, so let's see this first. So after importing dashboard, it will automatically fetch all the fields along with data type. Along with data type मैं क्यों बोल रहा हूँ, because देखो ये मैं पहले ही समझा रहा हूँ। टाइप, you can see there is a fields type, right? टाइप हमारे पास क्या है, if we have something in string, ओके तो स्ट्रिंग मतलब जैसे आपका कोई भी डेटा, जैसे इनवॉइस आईडी है, ब्रांच नेम है, राइट। एंड इफ़ दे आर एबल टू फाइंड द नेम ऑफ सिटी एंड स्टेट, सपोज दैट आपकी ब्रांच का नाम भी कुछ पर्टिकुलर सिटी होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बंजारा हिल्स, अंधेरी, कनॉट प्लेस, कोरबंगला डाल रखा है, राइट। बट टैब्लू इट्स नॉट एबल टू फाइंड दैट लेट और लैंग, बट वो सिटीज़ का लेट लैंग फाइंड करने में एबल है। सो हैदराबाद, महाराष्ट्र, तो वहाँ पे देखो ग्लोबल का आइकन है, राइट, ग्लोब का आइकन है। For same customer type, this is a string, and whenever we have something which is related to integer or which is something related to calculation, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक देखो वो नंबर को कलेक्ट कर लेता है। तो हम यहाँ पे नंबर, डेसिमल, होल ये भी चेंज कर सकते हैं। एंड इवन हम खुद से भी इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट इसने कुछ गलत टाइप पकड़ लिया है, सो हम उसका टाइप बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हो वैड, जो हमने टैक्स है वो, टोटल, इन सबको नंबर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। डेट टाइम के लिए इट विल शो द कैलेंडर आइकन, एंड यू शुड नो अबाउट ऑल थिंग्स कि भाई कैसे फिल्टर होता है, क्या टाइप होता है फील्ड का, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही उसको चेंज करता है। तो यू शुड चेंज इट इन फ्यूचर, लाइक अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो, राइट। एंड सेम टाइम ऑफ डे उन्हें स्ट्रिंग बना दिया, डे नेम, ABC, मंथ नेम एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। दिस वी हैव डन इन SQL, राइट। सो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ। देखो इसका रिमोट फील्ड नेम इसने यहाँ पे असाइन कर दिया, दिस इज़ द फील्ड नेम विच वी प्रोवाइडेड एंड दिस इज़ द रिमोट फील्ड नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका फिजिकल टेबल है, फिजिकल टेबल हमारी आ रही है हमारे डेटा सेट्स है, वन थिंग, ठीक है। और हाँ देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक टाइम, सो आई विल शो यू ईच पार्ट, ईच सेक्शन, बट इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इन डिटेल, बिकॉज क्या होता है ना कि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर पाते हो कभी कभार, बट हाँ आपको बिहाइंड द सीन नहीं पता है कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। सो जो भी हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ओके, सो आई विल गाइड यू कि आप उसको इस कोर्स के अंदर कैसे फाइंड कर सकते हो, किस पर्टिकुलर सेक्शन में वो आपको चीज़ मिलेगी, ओके। सो सपोज दैट इफ वी इम्पोर्टेड द डेटा एंड इफ वी install in the software, so you will able to find this in first section. Second, Excel and SQL, which we have done, you can find the second section, and here you can find the installation part of software, and here you will find the interface, dimension, how we can import the data, okay. So this is the data set. Now we have thousands of row, right? So we can start working without doing anything. If you have multiple table, so you can connect directly from here, like you will able to see the files here and you can directly connect this with data set, okay. So let's create our first sheet. You can see this is the go to worksheet, okay. So हमें अपनी KPIs create करनी है, तो एक बार हम प्रेजेंटेशन में चलते हैं। तो what are KPIs? KPIs stand for Key Performance Indicator, this I have already told you, ठीक है। So सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड्स के लिए की बनाने, तो मैं एक बार डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ, इट विल हेल्प, ओके। सो फर्स्ट KPI हमारी क्या है भाई, सेल्स की। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेल्स, प्रॉफिट, ऑर्डर, क्वांटिटी सोल्ड, एंड अकॉर्डिंग वन बाय वन वी विल क्रिएट आर 1 2 3 4 5 चार्ट्स, ओके। सो लेट्स गो टू टैब्लू पब्लिक, राइट, एंड मैं इसको साइमल्टेनियसली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है अपना सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना है, अपना सेल्स का टैब, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो शीट 1 है, सबसे पहले मैं इस करूँगा नेम चेंज, ओके। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ टोटल सेल्स, आप कैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेम के अकॉर्डिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ओके। सो टोटल सेल्स, व्हाट इज टोटल सेल? टोटल सेल इज सम ऑफ सेल, कि टोटल हमारा जितना भी सेल हुआ है उसका सम दे दो। तो यहाँ पे देखो टोटल नाम से हमारे पास वेरिएबल है, राइट।
यूनिट प्राइस नहीं हो सकता, टोटल अमाउंट जो हमने अर्न किया उसका टोटल दिखाएंगे सेल्स में, राइट। अगर आपसे कोई बोले प्रॉफिट, जो हम नेक्स्ट देखेंगे तो वो प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे आपको इसको ड्रैग करना है टेक्स्ट के अंदर। ओके, सो आप देख सकते हो हमारा टोटल सेल आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले एंटायर व्यू। ओके, एंड यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करके टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा सेंटर, एंड मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूँगा 12। ओके, एंड इसको मैं कर दूंगा बोल्ड, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे फॉन्ट को लाटो। ओके, सो आप देख सकते हो फॉन्ट चेंज हो गया एंड टेक्स्ट भी आ गया। अब हम इसको सेंटर लेके आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर नहीं हुआ, लेट मी चेक, लेट मी गो टू फॉर्मेट। ओके, अब यहाँ पे हमें इसका फॉर्मेट भी चेंज करना है, विच इज़ अ करेंसी। तो आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट की करेंसी यहाँ पे चेंज हो गई, राइट। एंड करेंसी हम करेंगे करेंसी कस्टम, एंड यहाँ पे हम देंगे अपना थाउजेंड्स। ओके, तो जिससे क्या होगा, हमारे जो नंबर है ना वो इंक्रीज़ नहीं होंगे। आप चाहो तो डेसिमल वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, जैसे देखो मैं 2 3 4 ऐसे कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। हमारे डैशबोर्ड में क्या है, लेट्स सी, इट्स 2। ओके, सो एंड ये सेम डेटा सेट है जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो यू विल नॉट कंफ्यूज कि भाई इसमें नंबर अलग हैं, इसमें नंबर अलग हैं, राइट। सो नाउ वी नीड टू मेक इट सेंटर, बट at table because center is not required. Okay, let it be, let's be here, then we will check. Okay, let's go to प्रॉफिट शीट। ओके, सो यहाँ पे हमें सिंपल एक अपनी प्रॉफिट ऑफ सेल्स या प्रॉफिट हम क्रिएट कर सकते हैं, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ओके, अब इसमें क्या करना है हमें, ऑफकोर्स कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, जो हमने कैलकुलेटेड फील्ड्स हमने बना चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है, उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपनी ग्रॉस इनकम। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हमें लेना है, तो ग्रॉस इनकम हमारी क्या हुई है, हम उसको ड्रैग कर लेते हैं टेक्स्ट के अंदर। ओके, सो आप देख सकते हो 42.3 पॉइंट के सेम टोटल है। तो सेम हमें रिपीट करना है यहाँ पे एंटायर व्यू टेक्स्ट, एंड यहाँ पे हमें इसको करना है चेंज। तो मैं इसको कर दूंगा 12, इसको मैं कर दूंगा बोल्ड, एंड नेक्स्ट इज लाटो। Okay, now you are able to see, and for formatting we just need to go sum, and then we will click on format, and after format we are able to see the custom currency, and okay, it will automatically apply that, and here we will choose the unit thousands. Okay, अगर आपकी सेल्स मिलियंस में जा रही है, ठीक है, तो यू कैन चूज मिलियन, बिलियंस, राइट, भगवान करे सेल्स जाए। ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्रिएटेड। ओके, सो लेट्स क्रिएट अनदर शीट विच इज टोटल ऑर्डर्स। ओके, अब टोटल ऑर्डर्स कैसे आप ऐड करोगे, सम ऑफ क्वांटिटी नहीं ले सकते, एंड सम ऑफ एनी अदर फील्ड भी नहीं ले सकते। तो नाउ वी विल टेक काउंट। ओके, सो वी विल ड्रैग द इनवॉइस आईडी, क्योंकि इनवॉइस आईडी से हम देख रहे हैं कितने यूनिक ऑर्डर्स हैं। आपको कोई यूनिक फील्ड ओपन करनी है जिससे आपको पता चले कि दिस आर द यूनिक ऑर्डर्स। तो हम उसको ट्रैक करेंगे टेक्स्ट में सिंपल, एंड यहाँ पे हम अपना फंक्शन चेंज कर सकते हैं, सिंपल काउंट। ओके, दिस इज द एग्रीगेट फंक्शंस, यू वी नो दैट इन एसक्यूएल, इन टैब्लू, एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट। ओके, सो आप देख सकते हो 1000 आ गया यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास 1000 ऑर्डर्स हैं। एंटायर व्यू कर देंगे, सिंपल टेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पे इसको, क्योंकि हमें सबका फॉन्ट सेम रखना है ना, क्योंकि हमारा एक ही रो के अंदर है फॉन्ट एंड साइज। ओके, बोल्ड रह गया, सो लेट मी मेक इट बोल्ड। अच्छा सॉरी, इसको देखो एक चीज़ और है, इसको सिलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि मल्टीपल टेक्स्ट यू कैन ऐड हेयर। ओके, दैट्स वाई इट्स नॉट अप्लाइड। तो देखो थाउजेंड्स आ गया। अब आप देख सकते हो थाउजेंड्स में हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि एक बार डैशबोर्ड में चलता हूँ मैं, वेयर इज़ माई डैशबोर्ड। हाँ, यहाँ पे सिंपल 1000 आ रहा है, तो वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग हेयर। ओके, ऑटोमेटिकली कॉमा भी आ रहा है। तो एक बार मैं न्यू शीट पे क्लिक करता हूँ। अब लास्ट हम यहाँ पे करेंगे अपना टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, अपने को क्वांटिटी लेके आनी है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सम ऑफ क्वांटिटी आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, और सेम हम अपना यहाँ पे एंटायर व्यू पे अप्लाई कर देते हैं। तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि भाई जब देखो, इट शुड नॉट ब्यूटिफुल, इट शुड बी इंसाइटफुल। जैसे आपका बंदा, अगर जैसे कोई भी मैनेजर हो, कुछ भी हो, वो सीधा डैशबोर्ड देखे ना, तो डैशबोर्ड देखते उसे समझ में आ जाए, अरे यार मज़ा आ गया, सारी चीज़ें मुझे एक बार में समझ में आ गई। तो दैट यू नीड टू डू। तो अब देखो यहाँ पे एक मैं फॉर्मेट करूँगा। फॉर्मेट में क्या कर रहा हूँ मैं, कि नंबर, और यहाँ पे मैं कस्टम में जाके, मुझे ये डॉलर नहीं करना यहाँ पे, वेयर इट इज़ ऑटोमेटिक नंबर कस्टम प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में मैं सिंपल हैश ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको डेसिमल में 0 करता हूँ, सॉरी नॉट हेयर, यहाँ पे से 0 कर दो। ठीक है, तो आपका क्या होगा
कि हैशटैग मैंने यहाँ पे दे दिया, सिंपल मेरे को मन है, मैंने हैशटैग दे दिया, अच्छा लग रहा था मुझे दिखने में, हेयर यू कैन सी, राइट। तो सिंपल आप इसको फॉर्मेट करके दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास, ओके, सो नाउ लेट्स वी विल क्रिएट वन मोर शीट। सो लेट्स क्रिएट वन मोर शीट विच इज मंथ ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है। देखो नाम सही रखोगे शीट का तो देन यू विल एबल टू गेट कि भाई ये मैंने शीट क्यों बनाई थी, ठीक है। तो हमें मंथ वाइज सेल्स यहाँ पे ग्रोथ दिखाना है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले टोटल को मैं ड्रैग करूँगा रोज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइन चार्ट और बार चार्ट जैसा कुछ क्रिएट करना है। एंड कॉलम में मैं यहाँ पे डायमेंशन में क्या दूंगा, रोज मैंने दे दिया टोटल। अब देखो टोटल यहाँ पे बिल्कुल सेल एक सी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई और फिल्टर नहीं है, टोटल है केवल, ओके। सो नाउ आई विल ऐड वन मोर डायमेंशन विच इज मंथ नेम। अब देखो मंथ नेम ड्रैग करते ही क्या हुआ भाई, एक आपका ये लाइन बन गया, राइट। अच्छा खासा बार चार्ट आ रहा है हर डिफरेंट के हिसाब से। अब मैं इसको ऑटोमेटिकली बार चार्ट लेता है, अब मैं इसको कर दूंगा लाइन, तो आप देख सकते हो लाइन बन गया। सेम हमारे पास जैसा प्रीव्यू में आ रहा है लाइक दैट। बट आप कह रहे हो कि भैया इसमें एक्सेस वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो एक्सेस तो हम नहीं दिखा सकते वहाँ पे, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे शो हाइट कर देंगे हेडर को, सिंपल वे। अब देखो आपका सिंपल लाइन चार्ट रह गया, राइट। सो वी कैन जस्ट इजीली ड्रैग एंड ऐड दैट। तो यहाँ पे इसको आप फिट हाइट और एंटायर व्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो इजीली हम इसको डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डैशबोर्ड साइमल्टेनियसली हम बना सकते हैं, बट वी विल क्रिएट दिस एट द एंड बिकॉज इट विल ऐड द वैल्यू, क्योंकि आपको सारा डेटा समझ में आ जाएगा, देन यू विल एबल टू ऐड ईजिली ईच ग्राफ की हमें वो कहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है विद फिल्टर्स, सो वी नीड टू ऐड ईच एंड एवरी फील्ड टुगेदर, ओके। सो लेट्स क्रिएट फॉर प्रॉफिट ऑल्सो, प्रॉफिट ऑर्डर्स एंड क्वांटिटी। तो क्या सेम है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ओके, सो लेट्स डू दैट, इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रॉस इनकम लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ग्रॉस इनकम लिया है सम, एंड देन इजीली हमें यहाँ पे मंथ नेम ड्रैग करना है, ठीक है। तो मंथ के हिसाब से हम प्रॉफिट गेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे लाइन में कन्वर्ट, यहाँ से इसको कर देंगे शो हेडर को हाइड। आई नो इट्स टोटल फास्ट बट इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे कर देंगे मंथ ग्रोथ प्रॉफिट, ठीक है। एंड एज अ डेटा एनालिस्ट यू शुड नो कि भाई हमें क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम पे है टोटल ऑर्डर, सॉरी नॉट दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम पे टोटल ऑर्डर्स है कि ऑर्डर्स भी हमारे मंथ के हिसाब से कैसे चेंज हो रहे हैं, मतलब हमारा काउंट कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मंथ टोटल या ग्रोथ मैं जी लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है, ग्रोथ ऑर्डर्स। तो सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको इनवॉइस आईडी ट्रैक करनी है, एंड यहाँ पे इनवॉइस आईडी को आपको लगाना है किसमें, काउंट में, ठीक है। एंड यहाँ पे इनवॉइस आईडी को ऐड करना है सिंपल, एंड देन व्हाट यू विल ऐड द मंथ नेम इन द कॉलम सेक्शन, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कॉलम क्यों है और रो क्यों है, राइट। दिस इज ऑल्सो वी शोड इन आर कोर्स, सो यू कैन चेक आउट दैट कोर्स ऑल्सो। सो आई विल हाइड द हेडर, आई विल हाइड दिस हेडर। अभी देखो फॉर्मेटिंग करने की ज़्यादा नीड नहीं पड़ रही है बिकॉज वी आर गोइंग स्मूथ, राइट। एंड नेक्स्ट इज मंथ क्वांटिटी सोल्ड, ओके, ये भी पता होना चाहिए। सो वी कैन जस्ट ड्रैग द क्वांटिटी एंड वी कैन जस्ट ड्रैग द मंथ नेम। और देखो अगर आपको ये लग रहा है ना अरे यार ये तो कितना इजी है, हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस। बिकॉज डेटा एनालिस्ट का काम केवल ये नहीं होता है कि भाई आप इंटरेक्शन और ब्यूटीफुल डैशबोर्ड बना के दे दो किसी को। आपके डैशबोर्ड में जैसे वैल्यू होनी चाहिए, जैसे सपोज दैट एज आई टोल्ड यू इन इंट्रो कि हर पर्टिकुलर कार्ड का, हर पर्टिकुलर यूनिट का कोई सेंस बनता है, कोई सेंस है, कोई मतलब है, राइट। इट इज़ नॉट जस्ट कि अरे यार कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, वाह वाह वाह, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। इट इज़ जस्ट कि आपके पर्सन को, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है या जो भी आपका मार्केटिंग एजेंट है या जो भी है, उसको डैशबोर्ड देखते ही समझ में आना चाहिए अरे यार अच्छा मुझे यहाँ पे काम करना है, अभी मुझे यहाँ पे सेल कम हो रही है तो यहाँ पे सेल इंक्रीज़ करनी है, राइट। और अगर ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है तो और मैं इसकी ग्रोथ कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, लाइक दैट, ओके। तो देखो हमारे 4 कार्ड्स क्रिएट हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मतलब ये हमारा ऊपर का काम हो गया, राइट। क्योंकि ये तो स्टैटिक टेक्स्ट है, सेल्स प्रॉफिट, दिस इज अ स्टैटिक वन, okay, and this is already we created. So after creating this KPIs, let's create our one more KPI which is monthly sales and growth. This is very important guys, because when you able to show okay in Jan we have this sale fab, so in this sales you can see it is increasing right. So now what we need to do is just go to Tableau dashboard, okay, this we need to create, okay. So let's go to our project and here we can just simply change monthly sales growth,
मैं जी लिख दे रहा हूँ यार, ठीक है, मंथली सेल्स एंड ग्रोथ। तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट सिलेक्ट द टोटल। देखो हम मोस्टली सेल्स पे काम कर रहे हैं तो इसलिए हम सम ऑफ टोटल ही ले रहे हैं, ओके। एंड देन वी कैन ड्रैग डेट, ओके। वाई डेट? क्योंकि हमें यहाँ पे डेट के हिसाब से फिल्टर लेना है। अब नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, इसमें ऑटोमेटिकली ईयर का फिल्टर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे इसे मंथ, जिससे ये क्या करेगा भाई, अपना मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा फ्रॉम डेट। अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, एंड यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है। So after adding sum and month date, let's show the labels. Okay, so if you click on label text, it will show the all labels there. But we need to format it. So हम क्या करेंगे, अपने लेबल में हम अपना टोटल ऑफ सम को ड्रैग करेंगे, ओके। एंड यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ क्या, फॉर्मेट, एज वी नो, ठीक है। तो नंबर्स को मैं करूँगा कस्टम करेंसी, देखो, एंड यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा प्रीफिक्स 1000 से, एंड यहाँ पे 2 डेसिमल की जगह मैं यहाँ पे 1 डेसिमल या 2 डेसिमल ले सकता हूँ एज पर यू नो, ठीक है। और डॉलर की जगह आप प्रीफिक्स चेंज कर सकते हो रुपीज़ में या जो भी आपको सही लगे, ओके। सो नाउ इट्स चेंज, एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन हाइड दिस बिकॉज वी आर एबल टू शो द थाउजेंड्स कि कितना 1000 सेल हुआ है, कितना मैक्स हुआ है, कितना मिन हुआ है, राइट। एंड यू कैन सी इन दिस डैशबोर्ड it is Jan, Feb and March, okay, but here it is complete month name. So what we can do, just click on that and you will able to see the format, or you can click on format also कि भाई इस पर फॉर्मेट पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे मैं डेट्स को देखो, ऑटोमेटिक फुल नेम एब्रीवेशन, इट इज चेंजिंग, राइट। फर्स्ट लेटर भी आप कर सकते हो, न्यूमेरिक भी कर सकते हो, न्यूमेरिक लीडिंग जीरो भी कर सकते हो, सब कुछ दे रखा है, राइट। तो मैं इसको कर देता एब्रीवेशन, ओके। सो इट इज क्रिएटेड। सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट शीट, ओके। एंड नेक्स्ट शीट हमारी क्या है भाई, which is sales by region. Sales by region, this is most important bar chart or you can say map or something statical data, because आपको लोकेशन वाइज डेटा पता चल रहा है कि भाई मेरा किस लोकेशन पर कितना सेल हो रहा है, राइट। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनी पीपल्स फेल टू आंसर दैट इन इंटरव्यू एंड इवन नॉट एबल टू क्रिएट इन देयर फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। सो व्हाट वी नीड टू डू, ऑफ कोर्स वी हैव से सम ऑफ टोटल, ये हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, लोकेशन के हिसाब से। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ लोकेशन वर्क। तो देखो जैसे ही स्टेट एंड सिटीज़ को ऑटोमेटिक मिल गया, तो टैबलू क्या करता है और कोई भी आपका विजुअलाइजर डैशबोर्ड क्या करता है कि वो लोकेशन को कन्वर्ट कर देता है लैट और लैंग में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो स्टेट के हिसाब से, तो मैं अगर यहाँ पे जैसे स्टेट ड्रैग करूँगा ना, तो आप देख सकते हो ये बार चार्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू शो इन अ मैप, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको चेंज कर लूँगा ऑटोमेटिक टू मैप, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आ रहा है, इसको मैं यहाँ से शो मी में यहाँ पे मैं मैप कर लेता हूँ, ठीक है। इट इज़ लुक बेटर, व्हाट इज इट्स फील्ड मैप, ओके। फील्ड मैप, फील्ड होता है यार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है। अब नाउ व्हाट आई नीड टू शो, आई नीड टू शो द नेम ऑल्सो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल कि सम ऑफ टोटल को, यहाँ पे देखो टेक्स्ट आ रहा है बट बहुत हिडन है क्योंकि ये सारा ऑल ओवर द टेक्स्ट है। मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि टोटल को भी मैं लेवल में ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। देखो टोटल आ गया, टोटल को मुझे अभी फॉर्मेट भी करना है जैसे इसमें के हिसाब से, एंड जो नेम है ना स्टेट का, उसको भी मैं ड्रैग कर दूंगा लेबल के अंदर। तो देखो नाम आ रहा है, अब मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। एंड so let's change the color of this state, okay। so what you need to do is you just click select the state and drag into the color, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे स्टेट का कलर चेंज हो गया ना, एंड यहाँ पे इसको हम कर देते हैं टॉप पे, सॉरी नॉट हियर, ठीक है। एंड इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूँ, ओके। तो मैं जैसे ही कलर पे क्लिक करूँगा, एडिट कलर पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आ रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर कलर पैलेट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको वापस कर देता हूँ मैप। कभी कभी क्या होता है ना, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेम कलर हमारे पास अप्लाई हो गया। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि देखो यहाँ पे सम टोटल इसको हम नीचे करते हैं, राइट। अब देखो आप महाराष्ट्र और इस तरीके से आ रहा है, एंड वी नीड टू फॉर्मेट दिस टेक्स्ट। तो सम टोटल में मैं क्लिक करूँगा, ऑफकोर्स फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे आई विल चेंज टू कस्टम करेंसी and it will be prefixed to 2 and thousands, ठीक है। So now it's created, okay, so you can click and filter also the data, right। so अब हम यहाँ पे जाएंगे और ओके, सो नाउ इट्स क्रिएटेड। नाउ लेट्स, देखो दिल्ली का भी आ रहा है यहाँ पे ठीक है, दिल्ली में बहुत कम सेल हुई है भाई। सो नाउ वी विल चेंज देयर नेम ग्लोबल, या फिर इसको आप कर सकते हो ग्लोबल ग्रोथ, ठीक है। लोकेशन ग्रोथ भी बोल सकते हो, स्टेट वाइज ग्रोथ भी बोल सकते हो, स्टेट
वाइज सेल्स, ठीक है। अब इसमें चाहो तो और भी फिल्टर लगा सकते हो। एंड आफ्टर ड्रैगिंग दैट स्टेट एंड इट विल जनरेट द लॉन्ग एंड लेट ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा, जो भी आप ड्रैग करोगे उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे एंटायर व्यू की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ दिस टूल कि मेरा कहाँ पे सेट होना चाहिए ये, ठीक है। और चाहे तो पर्सन भी अकॉर्डिंग टू द डैशबोर्ड रिक्वायरमेंट सेट कर सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू अदर शीट। हमारे पास नेक्स्ट शीट क्या है भाई? सो दिस इज डे वाइज सेल्स। अब देखो डे वाइज सेल्स क्यों हमें ज़रूरी होती है, क्योंकि वी नीड टू नो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वी नीड टू नो किस डेट पे ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हम स्टाफ मेंटेन कर सकते हैं, पैकेजिंग मेंटेन कर सकते हैं, रॉ मटेरियल मेंटेन कर सकते हैं। सपोज दैट मंडे को कोई कस्टमर ज़्यादा आ नहीं रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम 20 लोगों का स्टाफ रखें मंडे को, राइट। वी कैन एबल टू मैनेज विद 10 पीपल, 15 पीपल, विद वेटर्स और यू कैन से रिसेप्शन, ऑर्डर टेकर, एवरीवन, राइट, जो भी ऑर्डर वगैरह लेते हैं, राइट। सो उनके साथ हम मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर सेल किसी दिन ज़्यादा है तो हमें वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, तो यही डैशबोर्ड के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, प्रॉफिट जो ग्रॉस इनकम होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट, सब कुछ खर्चा करने के बाद, मार्केटिंग, लेबर, सेल्स, पैकेजिंग, सब कुछ इंक्रीज ऐड करने के बाद आता है। तो दैट यू शुड नो। देखो भाई, बनिया तुम्हें बनना पड़ेगा। बनिया क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि डेटा एनालिस्ट का काम ही यही है कि सामने वाले का प्रॉफिट कराना। डेटा एनालिस्ट इसलिए बूम हो रहा है क्योंकि हर छोटी से छोटे बिजनेस को भी नाउ नीड अ डैशबोर्ड, जिससे वो अपनी सारी सेल्स वगैरह हर चीज़ में, उसको कहाँ लॉस हो रहा है वो अपनी बुक्स में नहीं देख सकता। अब पीपल आर गेटिंग एडवांस, ठीक है, या एडवांस, या मैं कह रहा हूँ डम्ब ठीक है ना, मतलब सॉरी, कि पहले लोग बुक्स वगैरह में देखते थे, मुंशी से हिसाब लगवाते थे। अब आप मुंशी हो, डेटा एनालिस्ट मतलब मुंशी, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ शीट डे वाइज सेल्स, ठीक है, डे वाइज सेल्स। तो ऑफकोर्स डे वाइज सेल्स करनी है तो हमें सम टोटल अगेन, ठीक है। तुम लोग सम टोटल देख देख के परेशान हो गए होगे ना या एक मिनट, सम टोटल नहीं करते हम, क्वांटिटी सेल्ड के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी कैन गो विथ क्वांटिटी, ठीक है, सम आ गया क्वांटिटी का। एंड देन हमें क्या करना है, डे नेम। अब डे नेम हमें याद है, अगर आपने डे नेम से हमने फिल्टर निकाला था संडे, मंडे, इस तरीके से वी कैलकुलेटेड दिस फील्ड। अच्छा, यू आर सेइंग कि भाई हमने कैलकुलेटेड फील्ड अभी तक यूज़ नहीं करी है, तो कैलकुलेटेड फील्ड वी विल यूज़, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड हेयर, ठीक है। बट अभी तक ना उसका अभी तक हमने कोई यहाँ पे खास यूज़ किया नहीं है, राइट। सो लेट्स गो टू दिस, वी नीड टू क्रिएट अ पाई चार्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको वेर इट इज़ मैप पाई, ठीक है। अब देखो पाई में इसमें डॉट्स आ रहा है, बट मुझे चाहिए प्रॉपर पाई, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। सो व्हाट इट इज़, वी कैन नेम इट पाई चार्ट, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ एंटायर व्यू, तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास लेबल्स हैं, राइट, थर्सडे, ये इस तरीके से मैंने लेबल दे रखे हैं। ये आप टिप पे भी देख सकते हो कि भाई संडे को इतनी सेल है, सैटरडे को इतनी सेल है, राइट। एंड यहाँ से इसका ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। सी, जस्ट होवर देन शॉर्ट डे नेम असेंडिंग बाय क्वांटिटी, शॉर्ट डे नेम डिसेंडिंग बाय क्वांटिटी, ठीक है। सो अब मुझे इसमें लेबल चाहिए, तो लेबल में क्या कर सकता हूँ मैं, डे नेम में मैं लेबल ऐड कर सकता हूँ, डे नेम आ गया, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड में लेबल में ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज के मैंने हिसाब से दिखाया है। तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट क्लिक ऑन सम क्वांटिटी, क्विक टेबल कैलकुलेशन एंड परसेंटेज डिफरेंस, सॉरी नॉट परसेंटेज डिफरेंस, गलती क्लिक हो गया, परसेंटेज ऑफ टोटल। तो ये पता चल जाएगा कितनी जगह पे क्या सेल हो रही है, ठीक है, कितने परसेंट सेल हो रही है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहे हैं, राइट, मतलब जो भी आप कह सकते हो, आफ्टर डॉट वी हैव 3 नंबर्स, सो वी नीड टू चेंज इट। तो हम इसको फॉर्मेट में करेंगे, एंड यहाँ पे जाके कस्टम में जाके, ठीक है, नॉट करेंसी, परसेंटेज में जाके डेसिमल तक चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 कर सकता हूँ, ठीक है, या 2 कर सकता हूँ। तो आई विल गो विद 1। नाउ वी आर एबल टू सी फ्राइडे, संडे की कितने परसेंट सेल हो रही है, किस डे पे, क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है। तो आप इसको क्वांटिटी को चेंज करके टोटल भी कर सकते हो, राइट। अब डे वाइज सेल नहीं है, डे वाइज क्वांटिटी सेल सही है ठीक है, तो इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ टोटल, मुझे भी अच्छा नहीं लगा ना इस वजह से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको भी मैं चेंज करता हूँ, या फिर लेट्स रिमूव दैट ऑल फिल, लेट्स क्रिएट दिस अगेन। इतना कोई दिक्कत नहीं है हमें क्रिएट करने में, बिल्कुल खाली हो गया, ठीक है सो लेट्स गो टू फॉर्मेट एंड देन वी विल जस्ट ट्रैक द टोटल सम, देन वी विल ट्रैक द डे नेम, राइट, देन वी विल क्रिएट दिस टू पाई and pie chart, okay. And then we can just easily add the label. First of all, change into entire view, and we will add the
टोटल इन नेम ऑल्सो, जिससे वो टोटल दिखाई दे। और इसको हम चेंज कर देंगे यहाँ पे फॉर्मेट, हम कहेंगे क्विक टेबल कैलकुलेशन और क्विक टेबल में परसेंटेज ऑफ टोटल। एंड सिंपल हमें फॉर्मेट भी करना है इसको, तो फॉर्मेट में क्लिक करेंगे एंड इसको कर देंगे हम परसेंटेज में 2 डेसिमल या 1 डेसिमल तक। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी टू क्रिएट अ डैशबोर्ड, बट मीनिंगफुल डेटा निकालना थोड़ा सा टफ टास्क है। ओके, सो नाउ वी नीड टू क्रिएट। अब देखो यहाँ पे अगर शीट भर जाए और ये भी नहीं हट रहा है, हट जाएगा वैसे, तो नेक्स्ट क्रिएट अ न्यू शीट विच इज, दिस इज वन 2 लास्ट शीट वी हैव। नाउ वी हैव सम एडवांस टॉपिक गाइज, विच इज व्हाट, टॉप एंड प्रोडक्ट्स। टॉप एंड प्रोडक्ट्स व्हाट इज इट, टॉप एंड क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं टॉप 7 टॉप 5 भी लिख सकता था, टॉप 7 ही आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टॉप एंड प्रोडक्ट्स मतलब जब भी आप कोई फिल्टर ऐड करोगे, जैसे सबसे पहले तो टॉप एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास टोटल डेटा सेट है उसका आ जाएगा, भाई हमारे पास लास्ट ईयर जो सेल हुई थी उसमें से टोटल टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ये दिखाने से ना एक इंसाइट पता चलता है कि हमें किस प्रोडक्ट पे सेल ज़्यादा इंक्रीज करनी है, और किस प्रोडक्ट सॉरी नॉट सेल्स, किस प्रोडक्ट पे हमें ज़्यादा मार्केटिंग करनी है या किस प्रोडक्ट पे हमें कम मार्केटिंग करनी है। ठीक है, जैसे मान के चलो बास्केटबॉल कैप ऑलरेडी बहुत अच्छा सेल हो रहा है, या फिर पावर बैंक बहुत अच्छा सेल हो रहा है, तो हम पावर बैंक की मार्केटिंग का पैसा थोड़ा कम करके बाकी जिसमें सेल कम हो रहा है उसमें इंक्रीज कर देंगे, राइट। सो दिस इज वन बिजनेस इनसाइट। सो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, न्यू शीट हमने क्रिएट कर दिया, अब इसमें हम देंगे टॉप एन में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, बिकॉज हम एक फिल्टर लगाएंगे जिससे हम उसको 7 3 5 भी कर सकते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट अभी मैं यहाँ पे 7 दे रहा हूँ, यू कैन ऐड दैट अगेन। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे प्रोडक्ट नेम एंड हो गया। अब यहाँ पे ABC आ रहा है, अब यहाँ पे हम डालेंगे क्वांटिटी के हिसाब से, नॉट द सेल, क्योंकि देखो क्या हो सकता है, 10 फ्रिज आपने सेल करे रेफ्रिजरेटर, तो 10 रेफ्रिजरेटर आपने सेल करे तो उसकी सेल कितनी हो जाएगी, सपोज करो एक 20,000 का रेफ्रिजरेटर है, तो 10 बेच दिए 2 लाख की सेल हो गई, उसमें मार्जिन कितना है, एग्जाम्पल के लिए 20,000 की फ्रिज है, 2,000 रुपये पर फ्रिज हमें मिलता है, सब कुछ मार्केटिंग वगैरह सब कुछ करके, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 10 के हिसाब से देखा जाए तो 20,000 रुपये का, राइट, सेम। लेकिन हाँ राइट 20,000 का हुआ, ओके, सो 20,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्मॉल चीज़ सेल करी, ठीक है, अब जैसे जिसका प्राइस है 5,000 रुपीज़, ठीक है, अब 5,000 आपने सेल किया, लेकिन आपका 10 सेल हुआ, वो 5,000 में 10 सेल हुआ, तो 5,000 के हिसाब से 50,000 का सेल हुआ, लेकिन उसमें मार्जिन अच्छा था, उसमें आपको मिल रहे थे अराउंड 1,500 या फिर 1,000, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट फ्रेश से ज़्यादा उसका है। सो दैट्स वाई वी आर शोइंग क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, तो टॉप एंड प्रोडक्ट्स फॉर दैट। ठीक है, तो क्वांटिटी आप यहाँ पे कॉलम्स में लेने की बजाय ना आप यहाँ पे लेबल में ले लो इसको, तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट नेम आ रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, राइट। तो टेबल क्रिएटेड, बट हेयर यू कैन सी दिस इज सम हाईलाइटेड कलर टेबल। हाईलाइटेड कलर देखो यहाँ पे क्या है ना, जो सबसे ज़्यादा सेल है उसका कलर डार्क है, बाकी का लाइट, आप अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हो। तो व्हाट आई कैन डू, जस्ट क्लिक ऑन शो मी एंड जस्ट चूज द हाईलाइटेड टेबल। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे यार नंबर्स भी आ रहे हैं, तो नंबर्स कैसे आएंगे वो, तो नंबर्स ऐड करने के लिए सिंपल ट्रिक है, यू कैन ऐड इंडेक्स। ओके, इंडेक्स मतलब क्या होगा, नंबर ऐड करेगा, एंड इसको आपको चेंज करना है डिस्क्रीट, जिससे आपके रो में अलाइन हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4। अब नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड टॉप एंड। तो टॉप एंड क्रिएट करने के लिए वी नीड टू क्रिएट वन एडवांस फील्ड विच इज क्रिएट पैरामीटर। ओके, सो पैरामीटर में हम यहाँ पे नाम दे देते हैं टॉप एन। ओके, एंड यहाँ पे फिर हम डिस्प्ले फॉर्मेट ऑटोमेटिक रखते हैं, करंट वैल्यू हम दे देते हैं टॉप एन में 7 कर रहा हूँ, टॉप 7 प्रोडक्ट्स, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। Okay, so now let's filter the table. So we have created top n parameter, then we need to select product name and click on filter, and then we need to go top by field. अब by field मतलब हम यहाँ पे अपनी field choose कर लेंगे, तो हमें किससे filter करना है, quantity से, and by default is top 10, but we will apply our own filter which is top L. ठीक है, जो भी हम वहाँ पे उसको चेंज करेंगे वो चेंज कर लेगा। अब यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, सम करना है, एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, तो वी विल डू गो विथ सम। ओके, सो नाउ इट इज़ फिल्टर विथ टॉप 7 प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड आप चाहो तो यहाँ पे ना, दैट्स कूल, दैट्स ओके, वी कैन ऑल्सो ऐड सम मोर क्वांटिटी एंड सॉरी वी कैन चेंज सम कलर एंड ऑल दैट। सो वो आप यहाँ पे जाके सिंपल क्वांटिटी पे जाओ एंड एडिट कलर पे क्लिक करो। ओके, एडिट कलर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आप इस कलर को चूज़ भी कर सकते हो, जैसे ऑटोमेटिक है, आप इसको ऑरेंज भी दे सकते हो, ग्रीन रेड भी दे सकते हो, मल्टीपल कलर्स भी दे सकते हो, राइट। ये ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी सेल कलर को डार्क और लाइट करता रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऑटोमेटिक रहने देता हूँ, जो भी हमारा है अच्छा लग रहा है।
ठीक है. सो नेक्स्ट मूव टू आवर लास्ट कार्ड विच इज टॉप परफॉर्मिंग ब्रांचेस. टॉप परफॉर्मिंग ब्रांचेस मीन्स, देखो हमने स्टेट वाइज डेटा देखा, रीजन वाइज की सेल्स हमारे रीजन में कैसी हो रही है, डे वाइज डेटा देखा. अब ये भी हमें पता होना चाहिए भाई कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा सेल कर रही है. तो टॉप परफॉर्मिंग ब्रांचेस वी आर एडिंग हेयर. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू शीट एंड इसमें हम नाम देंगे टॉप परफॉर्मिंग ब्रांचेस. अब देखो ये डेटा यू आर शोइंग, देखो मैं ना मतलब इस पूरे डैशबोर्ड को क्रिएट करते करते आई एम एक्सप्लेनिंग यू वाई वी आर डूइंग दिस, वाई इट्स नीडफुल एंड वॉट इम्पैक्ट इट विल एड इन योर बिजनेस. ठीक है, तो देखो जैसे हम टॉप एंड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं ना, ये हो गया पॉजिटिव डैशबोर्ड. ओके, फॉर ऑल द थिंग्स, मतलब आप ये देख सकते हो दिस इज द पॉजिटिव डैशबोर्ड. बट if your manager, your marketing head wants to know, let's create one more dashboard which is a negative dashboard. Negative dashboard means जहाँ पे आपको सारी वैल्यूज का डिसेंडिंग ऑर्डर बदलना है. जैसे टॉप एंड प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे चाहिए बॉटम एंड प्रोडक्ट्स. बॉटम एंड प्रोडक्ट्स मतलब जिनकी सबसे ज़्यादा कम सेल है, सबसे कम सेल है, राइट. कुछ ऐसे जैसे किस रीजन में सबसे कम सेल हो रही है, ठीक है, कम क्वांटिटी किस प्रोडक्ट की सेल हो रही है, हमारी सेल डाउन किस मंथ में हो रही है, तो ये भी आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो अभी मैं टॉप क्रिएट कर रहा हूँ. इन नेक्स्ट वीडियो इफ यू कमेंट मोर सो हम एक नेगेटिव डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे. एंड गाइज वॉट एवर वी आर लर्निंग हेयर यू कैन ईजिली फाइंड इन दैट कोर्स. लाइक यू कैन सी, अभी हमने फिल्टर और पैरामीटर सर्च किया तो सेट ग्रुप, you will able to see in just 12 minute video कि how we can create parameter and many ways to use that. okay, because ये बहुत ही ज़्यादा in depth course है तो you can easily check that. डैशबोर्ड डिज़ाइन अभी हम पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा. तो स्टार्ट एनरोल ASAP. एंड बेस्ट पार्ट क्या है इसका पता है कि देर इज़ अ AI पार्ट ऑल्सो एडेड. सो सपोज इफ यू आर पिकिंग दिस Tableau कोर्स, सो इन फ्यूचर टिल नेक्स्ट 5 you don't need to learn any new topic or technology for creating the dashboards. Okay, interview preparation, and we have multiple projects also there. Okay, formatting, themes and everything. Okay, so let's back to the page and we are creating top performing branches. So how we can do that? Top performing branches by what? Sum of total, कि जो टोटल हमारी सेल हो रही है उसके अकॉर्डिंग. लाइक लेट मी शो यू हेयर. सो देखो यहाँ पे टोटल आ रहा है एंड बार आ रहा है. ठीक है, तो बार चार्ट हम पहली बार क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर एंड लोग ज़्यादातर बार चार्ट ही क्रिएट करते हैं. तो just for beautifying the context I am using the other charts also. Okay, so now let's drag the branches where you can see the branches name, branch, right? So let's drag to rows and columns में हमें ऐड करना है अपना sum of total, right? Okay, so now let's reorder that. Okay, ये बार क्रिएट हो गया. Let's show the labels. लेबल्स भी आ गए. ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, जो सम ऑफ टोटल है उसको टेक्स्ट में ड्रैग करेंगे लेबल में. नाउ वी विल गो टू फॉर्मेटिंग. परसेंटेज भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो इसको आप क्या कर सकते हो, वही करेंसी कस्टम एंड के. गॉट इट, चेंज हो गया 2 डेसिमल 1 डेसिमल, यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली. अब नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड टॉप परफॉर्मिंग. तो हम क्या करेंगे, वही सेम पैरामीटर को हम ट्रैक कर देंगे यहाँ पे. here we can drag filter, and then condition, top by field, total amount ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे, राइट. एंड यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे अपना टॉप एंड पैरामीटर एंड हम इसको कर देंगे अप्लाई. तो देखो जो टॉप ब्रांचेस है वो यहाँ पे शो हो रही हैं, राइट. सो अब हम इसको कलर को चेंज करेंगे. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सम टोटल है ना, वेयर इज दैट, इसको ड्रैग करके कलर में भी ऐड कर देते हैं. तो कलर भी चेंज हो गया. अब अपने अकॉर्डिंग अगर आपको कलर रखना है तो आप जाओ यहाँ पे एडिट कलर पे क्लिक करो, सिंपल. ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास ब्लू है तो मैं इसको ग्रीन भी कर सकता हूँ, मैं इसको ब्राउन भी कर सकता हूँ, मैं इसको ग्रे भी कर सकता हूँ, मैं इसको पर्पल भी कर सकता हूँ, राइट. ऑटोमेटिक रहने देते हैं. ठीक है, जो ब्लू वाला है वो भी अच्छा लग रहा है बिकॉज हमारा ये भी ब्लू हो जाएगा, ये भी ब्लू हो जाएगा, राइट. वो आपका मन है. ठीक है, अब आप देखो मैंने यहाँ से इंडेक्स वगैरह तो हाइड कर दिया है. तो आई एम जस्ट रिमूविंग द सॉरी नॉट दिस, आई एम जस्ट रिमूविंग द हेडर ऑफ एक्सेस. बस मैं अंधेरी, बांद्रा, इंदिरा नगर ये ब्रांचेस छोड़ देता हूँ. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, आर कंप्लीट फील्ड्स आर क्रिएटेड. अभी हमारे पास केवल ये वॉलमार्ट का लोगो वो हम ऐड करेंगे खुद से, ये टेक्स्ट ऐड करेंगे. दिस लास्ट अपडेटेड एंड वेलकम एडमिन एंड ऑल फिल्टर वी नीड टू क्रिएट. तो पहले हम ये सारी चीज़ें डैशबोर्ड में ऐड कर लेते हैं, देन वी विल गो विथ दिस अदर थिंग्स. ओके,